حماس دیر پا امن کے لیے تیار، اسرائیل کو فوری بمباری روکنی چاہیے۔ معاہدے پر بات چیت جاری ہے، ایسے میں بمباری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر رد عمل۔ ویڈیو پیغام میں کہا، آج جنگ کے خاتمے کی جانب عظیم دن ہے۔ سعودیہ، قطر، اردن اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ کہا، سب متفق تھے کہ جنگ ختم ہو اور امن قائم ہو، ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ حماس کا امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے پر مثبت رد عمل۔ تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور لاشوں کی واپسی کے لیے تیار۔ زمینی حالات سازگار ہونے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر بھی اتفاق۔ اتھارٹی کا قیام قومی اتفاق رائے اور عرب ممالک کی مشاورت سے ہوگا۔ حماس نے نئے سیٹ اپ میں ٹونی بلیئر کا کردار مسترد کر دیا۔ حماس ثالثی کے ذریعے فوری مذاکرات شروع کرنے پر بھی تیار ہو گیا۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک گروپ غیر مسلح نہیں ہوگا۔ غزہ کے مستقبل پر عالمی قوانین کے مطابق بات چیت کا مطالبہ۔ پاکستان، عرب اسلامی ممالک اور ٹرمپ کی کوششوں کی ستائش کی۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں زمینی آپریشن روکنے کا حکم دے دیا۔ نیتن یاہو کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے اقدامات پر آمادگی کا اظہار۔ صہیونی آرمی چیف نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، امن فارمولے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے اسرائیلی فوج مخصوص علاقوں سے پیچھے ہٹے گی۔ قابض فورسز کو صرف دفاعی اقدامات کی اجازت ہوگی۔ غزہ میں 24 گھنٹے کے دوران 20 فلسطینی شہید۔ حماس کے مثبت جواب پر غزہ میں جشن کا سماں۔ فلسطین میں جنگ بندی اور امن کی امید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ لکھا، حماس کی طرف سے جاری بیان جنگ بندی کی کرن ہے۔ صدر ٹرمپ، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت کا بھی شکریہ، جنہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے حماس کے رد عمل کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو فوری حملے بند کرنے چاہیے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی ہمدردی کی امداد کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے فوری اور پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عالمی رہنماؤں کا حماس کے مثبت جواب کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا یہی موقع ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی کوششیں ہمیں امن کے قریب لائیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا تمام فریقین پر جنگ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے پر زور۔ ترک صدر نے بھی حماس کے مثبت رد عمل کو خوشائند قرار دیا۔ مصر، قطر، اٹلی، آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی غزہ میں قیام امن کی جانب مثبت پیش رفت کو سراہا۔ سموتھ فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے متعدد کارکن اسرائیلی جیلوں میں منتقل۔ ملک بدر ہونے والے 4 اطالوی کارکن اٹلی پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ دیگر کارکنوں کی ملک بدری کا عمل بھی جاری ہے۔ غزہ کے محصور عوام کو امداد پہنچانے کے لیے ایک اور فلوٹیلا اٹلی سے روانہ۔ کانشنس نامی کشتی میں سوار کارکن سوار۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کا کہنا ہے کہ امدادی کشتی میں زیادہ تر طبی کارکن اور صحافی ہیں۔ بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ مظفر آباد میں وفاقی حکومت کا جو وفد بھیجا گیا تھا، ہماری بات چیت کامیاب ہوئی اور آزاد کشمیر میں امن واپس بحال ہوا۔ احتجاج جو تھا وہ وائلنٹ ہو گیا اور اس میں کافی سارا خون بہا، جو بہت تکلیف دہ ہے۔ حکومت کے بر وقت اقدام سے اور ہمارے وہاں کے انتظامی سٹرکچر کے اداروں کے سب کے تعاون سے ایک اس کا فوری حل ہے۔ ان کے کچھ مطالبات کی شکل میں کوشش یہ ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ آزاد کشمیر میں امن بحال۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔
हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का मुआहिदे का ऐलान। हुकूमती कमेटी कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद पहुँच गई। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। मुज़ाकरात का कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। कमर ज़मान कायरा ने कहा, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में खून बहने का वाक़या अफसोसनाक है। मुआहिदे की शक्ल में फौरी हल निकाला गया। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अमीर मकाम ने कहा, भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले, कोशिश है खित्ते में भाईचारा कायम रहे। मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात अवामी थे। मुतालबात हल करने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफिज हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। वफाकी वुज़रा और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के निकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वालों के वुरसा को मुआवजा दिया जाएगा। शुहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। ज़ख्मियों को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फ़ंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। नून लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर और बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तलाफात कम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को हिदायत की कि हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी उमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्टी क़यादत को पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात के पसे पर्दा मुहर्रिकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और तय पाने वाले मुआहिदे से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर में फसादात को हवा देने वालों का सदेबाब किया जाए ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप अरब सरबराहों से ताज़ा राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। PIA का बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को मानचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार परवाज़ें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर 15 घंटे की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मानचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नए कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई 2025 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर निफाज 1 जुलाई 2025 से मुतवक्के। मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल महसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरुका से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। बलोचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की शामत। खुजदार के इलाके जहरी में पुरअमन लोगों को हिरासा करने वाले 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक।
20 से ज़ायद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर अवाम के पाक फौज के हक में नारे, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर खुशी का इजहार। मार्का हक में आलमी रुसवाई के बावजूद शिकस्त खोरदा भारतीय फौज का जंगी जुनून बरकरार। इक़्तिदार पर काबिज मोदी ने हस्ब रिवायत बिहार इंतखाबात से कबल पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा ले लिया। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज़ का इशारा। जनरल ओपिंदर ने कहा कि इस बार भारत पूरी जंगी तैयारी के साथ कार्रवाई करेगा। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत की गीदड़ फपकियाँ मार्का हक की शिकस्त को छुपाने की नाकाम कोशिश करार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का किनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। किनेट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर 8 अक्टूबर को समाअत होगी। जस्टिस समीनुद्दीन खान चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली और 26 तरमीम के खिलाफ चैम्बर अपील पर 7 अक्टूबर को समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के लिए मुजव्विज़ा मुसव्विदा वजारत पार्लिमानी उमूर को अरसाल। सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतालिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा कराई जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के बाद कोई नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होगी। ख़वातीन के 5% कोटे पर अमल दरामद ना करने पर सियासी जमात को 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। भारत दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ सकता है। दरियाई रावी में भी 35,000 क्यूसेक पानी आने का इम्कान। DGPDM में इरफान अली काटिया का कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद बारिश मुतवक्के है। सैलाब से नुकसानात का आज़ाला करने के लिए कोशा हैं। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल अब मामूल के मुताबिक है। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम भी जारी है। बहेरा अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके समंदरी तूफान में शक्ति में तब्दील। महकमे मौसमियात का 7वां अलर्ट जारी। समंदरी तूफान कराची से 390 किलोमीटर जनूब और जनूब मगरिब में मौजूद है। महकमे मौसमियात की सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई। शहर कायद के बासी समंदरी तूफान का सुनकर सी व्यू पहुँच गए।